Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyatan Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyatan. Almost 3 years when I was in Rasul Khaima. So His Holiness Murlidhar Charan Prabhuji is a disciple of His Holiness Radhana Swami Maharaj, and Mataji's is Sakhi Charan Mataji, and they have a very beautiful daughter Radhika, and the entire family is beautifully practicing Krishna consciousness and getting so many souls to the lotus feet of Srila Prabhupada and Gaudiya Vaishnava and Sri Radha Krishna. And Prabhuji, during lockdown, they started a online, like the way we have every single day. They have a session in Bhagavad for all the Konkani devotees. Every single day they conduct uh, Bhagavad Katha, and many devotees all around the globe are connected who give pravachan in Konkani. So every day, almost 40 to 50 devotees join and listen to Krishna Katha by mercy of His Grace Murlidhar Charan Prabhuji and Mataji. And apart from that, every Ekadashi they recite the entire Bhagavad Gita. So whoever is on the group, everybody is allotted shlokas, and by mercy they get to listen to the entire Bhagavad Gita every Ekadashi. And in between, they even show how to chant one round glories of holy name. So this is how Prabhuji has been actively involved in preaching the mission of Srila Prabhupada. Prabhupada and Prabhuji, in his as a career, he is a financial controller in a big company called Al Dabawi. It's a big group in UAE, and Prabhuji is doing everything. Like he is now taking care of the entire Russell Khaima, and lot of people are connecting there. He even did a lot of labor preaching in that area, in the industrial areas. So we are very fortunate to have such a great soul amongst us. So without wasting more time, I request His Grace Murlidhar Charan Prabhu. We also thank on behalf of all the devotees for accepting this invitation. And yes, Prabhuji, over to you. Thank you so much. All glories to Prabhupada. Hare Krishna. Dandavat. Thank you, Surat Madhaprabhu, for the introduction. And also, I would like to welcome, there are a lot of other devotees who have joined. So we welcome you all. Thank you. Thank you, everybody. Thank you, Murlidhar Charan. हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, सूरत माधव प्रभु जी और गोपी मनोहर प्रभु जी। मैं जय राधा माधव से शुरू करना चाहता हूँ, अगर आपका आज्ञा हो तो। जय, मेरा वॉइस ऑडिबल है ना प्रभु जी? क्लियर है ना? Yes. जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरवनचारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपदा, जय प्रभुपदा, जय प्रभुपदा, जय प्रभुपदा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवत्युत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद्भागवतम की जय। डिवाइन ग्रेस श्रीला प्रभुपाद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। आज का जो सत्र पे सभी को स्वागत है। श्रीमद् भागवतम का पहला स्कंद 8वां अध्याय 49 और 50 ये श्लोक मुझे दिया गया है इस ग्रेस गोपी मनोहर प्रभु जी ने और इस ग्रेस सूरत माधव प्रभु जी ने। तो अगर हो सकता है तो मैं शेयर करना चाहता हूँ। So is it possible for me to share or yeah, Prabhu, you can do that, Prabhu. Can share and is it visible? it will come now. Just a minute. Yeah, Prabhu. Yeah. Visible. बालद्विजसुहृन्मित्रा पितर्भर्तेर्गुरुद्रुहाः न मे स्यान्निरयान् मोक्षो हैपिवर्षायुतायुतैः। Prabhuji, you said someone is going to repeat, right? Yeah. बालद्विजासुरन्मित्र भ्रात्र गुरुद्रुहः मे स्यान्निरयान् वर्षायुतायुतैः। इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग ऐसा होता है, बाल लड़के, द्विज 2 बार जन्म लेने वाले, सूरत शुभ चिंतक, मित्र मित्र, पितृ चाचा ताऊ, भात्र भाई, गुरु शिक्षक का, द्रोह मारने वाला, न कभी नहीं, मैं मेरा, स्वार्थ होगा, त्याग होगा, निर्यात नरक से, मोक्ष मुक्ति ही निश्चय निश्चय ही, अपि यद्यपि, वर्ष साल, अयुक्त लाखों, आयुते जोड़े जाने पर,
मैंने अनेक बालकों, ब्राह्मणों, शुभ चिंतकों, मित्रों, चाचा तथा गुरुओं तथा भाइयों का वध किया है। भले ही मैं लाखों वर्ष तक जीवित रहूं, लेकिन मैं इन सारे पापों के कारण मिलने वाले नरक से कभी भी छुटकारा नहीं पा सकूंगा। तात्पर्य डिवाइन ग्रेस श्रीला प्रभुपाद की जय। जब भी युद्ध होता है तब अनेक निर्दोष प्राणी यथा बालक, ब्राह्मण, स्त्रियां, जिनका वध सर्वाधिक पापपूर्ण माना गया है, वे भी मारे जाते हैं। ये सब निर्दोष प्राणी है और समस्त परिस्थितियों में इनका वध शास्त्रों द्वारा वर्जित है। महाराज युधिष्ठिर को इस सामूहिक समार का पाप का पता था। इसी प्रकार दोनों ही दलों में मित्र, चाचा, ताऊ तथा शिक्षक थे और वे सभी मारे गए। उनके लिए ऐसा नरसंहार का सोचना ही भयावह लगता था। अतएव वे लाखों करोड़ों वर्षों तक नरक में पड़े रहने का विचार कर रहे थे। वर्स नंबर 1.8.50। नैनो राजनः प्रजा भर्तुर्धर्मयुद्धे वधोद्विषाम् इति मे नातु बोधाय कल्पते शासनं वच। नैनो राज्ञः प्रजा धर्मयुद्धे वधोद्विषाम् इति मे न तु बोधाय कल्पते शासनं वचः। न कभी नहीं एन पाप राजा का प्रजा भर्तु प्रजा के पालन में व्यस्त रहने वाले, धर्म सही निमित्त के लिए युद्ध में, वध संहार, दुष्टाम शत्रुओं का, इति ये सब मैं मेरे लिए न कभी नहीं, तू लेकिन, बोधाय संतोष के लिए, कल्पते वे शासन चलाने के लिए है। शासनम आदेश, वच शब्दों का। जो राजा अपनी प्रजा के पालन में लगा रहकर सही निमित्त के लिए वध करता है, उसे कोई पाप नहीं लगता, लेकिन यह आदेश मेरे ऊपर लागू नहीं होता। तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस श्रीला प्रभुपाद जी का। महाराज युधिष्ठिर ने सोचा कि यद्यपि वे वास्तव में राज्य का शासन नहीं चला रहे थे, क्योंकि दुर्योधन द्वारा नागरिकों का बिना किसी क्षति के शासन तो चलाया जा रहा था, फिर भी
दुर्योधन के हाथों से राज्य छीनने हेतु अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए उन्होंने इतने सारे जीवों का संहार कराया। यह संहार शासन चलाने के दौरान नहीं हुआ था, अपितु अपने को बड़ा बनाने के लिए हुआ था। अतएव उन्होंने इस पाप के लिए स्वयं को दोषी समझा। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते स्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को आज का छत्र पे स्वागत है। आज वामन द्वादशी का दिन पे ऐसा एक अवसर मिला है डिस्क्रेस गोपी मनोहर प्रभु जी और डिस्क्रेस सूरत माधव प्रभु जी का अनुग्रह से दो शब्द श्रीमद् भागवतम के बारे में कहने का ये अवसर। श्रीमद् भागवतम में 9वां अध्याय 9वां स्कंद 4वां अध्याय 68 वर्ष। जिसको अर्हता नहीं है उसको भी भगवान अपने प्योर डिवोटीज के थ्रू कृष्ण भावनामृत में लगाते। इसके सबसे बड़ा उदाहरण सूरत माधव प्रभु जी और गोपी मनोहर प्रभु जी है। मेरा जो बैकग्राउंड इस तरह सूरत माधव प्रभु जी ने बताया, जो दामोदर देश यात्रा इसके शिवला प्रभु जी का आशीर्वाद है कि ऐसा एक जगह पे पहुंच है कि रासल खेमा जैसा जो दामोदर देश से थोड़ा दूर है, फिर भी अमृत जैसा प्रेम और अनुग्रह जो यात्रा अध्यक्ष हमेशा हमारा ऊपर बरसाता है। तो उसमें एक उदाहरण है ये दोनों भक्त सूरत माधव प्रभु जी और गोपी मनोहर। साधवो हृदयं मह्यं साधूनां हृदयं त्वहम् अत्यन्त्यत्यने जानाति
नाहं तेभ्यो मनागपि। कृष्ण भगवान खुद बताता है, किसको बताता है? साक्षात दुर्वासा मुनि, जो सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी है, क्या बताता है? मेरा जो शुद्ध भक्त है तो वो हमेशा मेरा हृदय में बसता है, और उन भक्तों के हृदय पे मैं बस जाता हूं। ये शुद्ध भक्त किसी और चीज को नहीं जानता, और मुझे भी किसी और चीज जानना नहीं। तो सबसे पहले जब मैं रसल खेमा में आया था तो सूरत माधव प्रभु जी का आशीर्वाद हमेशा बरसाता था। हमेशा संग होता था कि साधु संग, जो इस रीति जगह पे जब कुछ भी नहीं थे, तब सूरत माधव प्रभु जी ने उसका जो साधु संग से ये बीज इधर छोड़ के गया। तो पहले पहले दिन में जो आश्रम में जो प्रवचन होता था, तो वरिष्ठ भक्तों को हम दामोदर देश से बुलाता था। तो उसमें सबसे पहले जो आया है ग्रेस गोपी मनोहर प्रभु, और वो जो आश्रम में जो नए नए भक्त जो जोड़ा हुआ था, उसमें बहुत सारा भक्त कृष्ण भावनामृत में जुड़ गया। किधर भी गया जो दूसरे जगह पे, उधर से अभी भी उनका कुशलता पूछ के बता रहे कि उस दिन कृष्ण भावनामृत में जोड़ने का मौका मिला, इसलिए आज भी प्रयत्न कर रहा हूं कि कुछ न कुछ जप करे। तो ऐसा साधु संग कृष्ण भगवान जो 9वां स्कंद में जो बता रहा है वो सच है। ये 2 उदाहरण आपके सामने ही है। आज भी हर रोज श्रीमद् भागवतम का कथा होता है। जब प्रभु ने मुझे कहा कि श्रीमद् भागवतम का एक क्लास देने का है, तो मैं बहुत बार सोचा कि मैं प्रासंगिक नहीं हूं, तो कैसा मैं क्लास दूं, वो भी वरिष्ठ भक्तों, सत्यराज प्रभु, सर्वोदय प्रभु, बुद्धप्रेष प्रभु जी, तो बहुत सारा वरिष्ठ भक्तों के सामने मेरा क्या हो सकता है कि मैं एक प्रसंग दे दूं। उनका अनुग्रह लेना चाहिए, प्रसंग सुनना चाहिए। लेकिन मैंने एक लेक्चर सुना था कि इस ग्रेस गौर गोपाल प्रभु जी, उसका पुस्तक पे अमेजिंग सीक्रेट्स बोल के एक पुस्तक है। तो उसमें बता रहा है कि अगर आपको कुछ पता नहीं है तो बोल दो कि हो सकता है, करने के लिए तैयार हो। उसके बाद शुरू करो कि क्या करने का है। तो वैसे ही मैंने सोच लिया, पहले पहले सूरत माधव प्रभु जी तो मेरा तो शिक्षा गुरु है, तो उसका आज्ञा तो मुझे मानना ही पड़ेगा। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं करने के लिए तैयार हूं। तो फिर मुझे दूसरा क्लास दिया कि अगर हो सकता है तो हिंदी में प्रवचन देने का। तो मुझे सेकेंड मुश्किल, सूरत माधव प्रभु जी को पता है कि जब हम आश्रम जाते थे तो प्रभु जी देता था, मुझे बात भी नहीं करने के लिए आता था हिंदी में, क्योंकि मैं जो बता रहा हूं वो उनको समझ में नहीं आता। तो मैं हमेशा इंग्लिश यूज करता था।
तो ये उदाहरण है कि भक्तों का संग और अनुग्रह के वजह से कुछ भी हो सकता है। किसी को अगर हो जाए कि बात भी नहीं कर पाएगा, लेकिन उनका अनुग्रह से हम व्यासासन पे बैठ के गुरु का, स्पिरिचुअल मास्टर, उनका आशीर्वाद हमेशा होता है। तो उनका आशीर्वाद में क्या होता है? साधु संग करो और कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने का कोशिश करो। ऐसा नहीं है कि घर पे बैठ के मैं माला करता हूं और प्रचार नहीं करना चाहता। ये साधु संग और गुरु कृपा, जो दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरुओं का, वरिष्ठ भक्तों का कृपा जो होता है, उसके अकेला वजह से हम प्रवचन करने का कोशिश कर रहा है। दूसरा एक बात क्या है कि श्रीमद् भागवतम का, श्रीमद् भागवतम में 12 स्कंद में 13 अध्याय 18 श्लोक ये बता रहा है कि श्रीमद् भागवतम पुराणममलम यद्वैष्णवानां प्रियम यस्मिन् पारमहंस्यम् एकममलम् ज्ञानां परं गीयते तत्र ज्ञान वैराग्य विराग भक्ति सहितं नैष्कर्म्यम् आविष्कृतम् तच्छृण् सुपतान् विचारण परो भक्त्या विमुच्येन्नरः। श्रीमद् भागवतम एक अमूल्य रत्न है और सभी वैष्णवों का और शुद्ध भक्तों का प्रिय है। क्यों प्रिय है? क्योंकि ये जो परमात्मा का ज्ञान प्रदान करता है, और जो श्रीमद् भागवतम सुनता है ये भौतिक जगत से दिव्य जगत पे मोक्ष प्राप्त है। कैसा मोक्ष प्राप्त करता है? कि भक्ति के वजह से, शुद्ध भक्ति के वजह से, सुनने के मात्र, श्रीमद् भागवतम सुनने मात्र। तो जो व्यक्ति, जो बद्ध जीव श्रीमद् भागवतम सुनने का प्रयास करता है और हमेशा पठन और प्रवचन सुनने का कोशिश करता है, वो मुक्ति पा सकता है। तो इतना सुंदर श्रीमद् भागवतम और साधु संग के कारण से हम श्रीला प्रभुपाद का जो आंदोलन है उसके लिए थोड़ा सा चीटी जैसा थोड़ा सा सेवा करने का प्रयास हो जाता है। ऐसा नहीं है कि हमारा जो क्वालिटी है वो कि प्रवचन करना। इन कारण से, इन सभी कारण से हम कृष्ण भावनामृत का प्रचार कर सकते हैं। तो आज का चर्चा का विषय है युधिष्ठिर महाराज जो सर्वश्रेष्ठ भक्त है। युधिष्ठिर महाराज बता रहा है कि कैसा मैं इतना सभी को मार डाला,
जो रिलेटिव्स है, चाचा, नाना और सभी का वध कर दिया। तो उसके बाद अगर आपने ऑलरेडी जो पढ़ा है इस अध्याय पे, महारानी कुंती जो पंच पांडवों का प्रिय मां का जो प्रार्थना स्तुति सुना होगा, बहुत बहुत अतुलनीय है ये स्तुतियां, जो हमारा जीवन में जो उतारने का कोशिश करना चाहिए। तो उसकी चर्चा सभी ने सुना होगा और श्रीला प्रभुपाद जी ने इसमें बहुत विस्तारित प्रवचन दिया है एक एक स्तुति के ऊपर। अभी आपका मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि श्री कृष्ण परमात्मा युधिष्ठिर को और पंच पांडवों को आदेश दिया हुआ है कि 3 अश्वमेध यज्ञ करो और आपका राज्य संभालना शुरू करो। उसके बाद भी जब कृष्ण भगवान हस्तिनापुर से वापस लौट जा रहा है, तब युधिष्ठिर महाराज आपके ऐसा प्रश्न, उसका जो मन का अंदर जो चिंता है वो कृष्ण भगवान से बता रहा है। तो ऐसा बहुत सारा जो कष्ट हमारा मन में भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि श्रीला प्रभुपाद जी बता रहा है कि ये जो युद्ध धर्म के लिए हुआ है, और युद्ध में अगर किसी को, अधर्मी को मारना है तो जरूर वो मारना ही है, ऐसा नहीं छोड़ना चाहिए। हम कृष्ण भावनामृत में आया हुआ ये मतलब ये नहीं है कि हम किसी का वध या अगेंस्ट ना बोले। कृष्ण भावनामृत में आने के बाद भी जिधर भी जो कष्टता है, जो एग्रेसर है, जो अधर्म करता है, उसके ऊपर हमारा वॉइस तो रेस करना ही चाहिए। तो श्रीला प्रभुपाद जी हमको चैतन्य महाप्रभु का उदाहरण देता है। चैतन्य महाप्रभु का हम सभी को पता है कि श्री श्री शिक्षाष्टकम में जो वर्सेस है, तृणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरिः। वैष्णव को तृणादपि सुनीचेना, जो बहुत टॉलरेंट होना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए कि जाके किसी को मारे और निंदा करे। लेकिन शास्त्रों ये बता रहे हैं कि 6 तरह का जो अधार्मिक लोग हैं उनको जरूर दंड देना चाहिए या मारना चाहिए। कौन है वो 6 तरह का जो लोग अधार्मिक? जो विष देता है, दूसरा किसी का घर को आग लगाता है, तीसरा किसी अस्त्र शस्त्र के साथ
किसी को मारने का कोशिश करता है, और जो धन का चोरी करता है। पांचवा, किसी का भूमि हड़पता है, और लास्ट, किसी का पत्नी को किडनैप करता है। तो इन 6 अधार्मिक लोगों को जरूर मारना चाहिए। किसको मारना चाहिए? चातुर्वर्ण्यम। शिला प्रभुपाद जी बता रहे हैं 4 वर्णों के बारे में। उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। क्षत्रिय का जो ड्यूटी है मारने का, ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण जाके मारे और वैश्य जाके मारे, शूद्र जाके मारे। क्षत्रिय का ड्यूटी है जो इन चीजों का देखभाल करना। जो हमारा कृष्ण भावनामृत में हम बहुत सारा कष्ट उठाता है। हम हमारा जीवन हमेशा भौतिक लोगों के साथ तुलना करना चाहता है। कभी कभार ये सोच रहा होगा कि मैं कृष्ण भावनामृत में आ तो गया, लेकिन बाहर का लोग देखो इतना अच्छा मॉल में जाता है और खेलने के लिए जाता है, और इधर जाके मजा करता है, उधर जाके मजा करता है, सिनेमा देखता है। तो हमारा कभी कभी मन विचलित हो जाता है, और वो लोग जो देखता है कि कृष्ण भावनामृत का ये लोग हमेशा प्रसाद पाता है और खुश भी रहता है, तो दोनों का सोच इस जो श्लोक में बताया गया 50वां श्लोक में, द्विषाम, जो एनवियस के बारे में बता, जो भौतिक जगत में जीने वाले, जो मजा करने वाले और कृष्ण भावनामृत न अपनाने वाले, वो कभी कभार द्विषाम हो जाता है। तो उनको कभी कभार ऐसे लोगों को साथ हम संग करने का कम कोशिश करना चाहिए। पहले तो करना ही नहीं चाहिए, लेकिन आजकल के जमाने में कभी कभार हमको भौतिक दुनिया में जाना ही पड़ता है, ऐसा नहीं कि बाहर जा सकते। तो युधिष्ठिर महाराज कभी कभार दिखता था कि मेरे वजह से ये सब हुआ है, इतना युद्ध हुआ है, इतने लोगों का मरण हुआ है, लेकिन ये नहीं हम देखता है कि कृष्ण के आदेश पर धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे सबसे पहला वाला श्लोक क्या बता रहे? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। क्यों धर्म क्षेत्र है वो? क्योंकि कृष्ण, साक्षात कृष्ण परमात्मा उधर मौजूद था व्यक्तिगत रूप पे। वैसे ही कृष्ण भावनामृत में जो भक्त है, उनका घर पे, एक एक घर पे कृष्ण का मूर्ति होता है। वो कृष्ण का मूर्ति जो घर पे होता है, वो घर को मंदिर समझना चाहिए, और हर घर धर्म क्षेत्र जैसा है। जो भौतिक जगत में जिसके घर पे कृष्ण का चित्रपट नहीं है, वो धर्म क्षेत्र नहीं है। जिसका भक्तों के संग होता है, वो घर पे धाम जैसा होता है।
पद्म पुराण उत्तरखंड 71st चैप्टर 270 श्लोका बता रहा है, तत्र तिष्ठामि नारद यत्र गायन्ति मद्भक्त। वो दुनिया में किधर भी होने दो, भारत में होने दो, बांग्लादेश में होने दो, नेपाल में होने दो, या अरब राज्य में होने दो, या अमेरिका में होने दो, जिधर कृष्ण है उपस्थित है उधर धर्म क्षेत्र बता रहा है। अभी हमको लग रहा होगा कि इतना शुद्ध भक्त, सर्वश्रेष्ठ जो राजा है युधिष्ठिर महाराज, क्यों ऐसा बता रहा है कि उसके वजह से युधिष्ठिर महाराज हमको सिखाना चाहता है कि भक्ति में अगर है तो हमेशा हम्बल होना चाहिए। मैंने किया ये, वो अविद्या हमको दूर रखना चाहिए। लेकिन हम क्या करता है हमेशा, मैंने किया, मेरे वजह से हुआ, वो पॉजिटिव साइड से हम लेता है। मतलब पॉजिटिव थिंग्स जो मैंने किया, जो नेगेटिव थिंग्स है वो किसी और के वजह से हुआ, ये अविद्या हमको हमेशा होता है। लेकिन श्रीला रूपा गोस्वामी भक्ति उपदेशामृत में ये बता रहे हैं कि अविद्या से हम दूर रहना चाहिए। कैसा दूर रहे? स्यात् कृष्ण नाम चरितादिसिताप्य विद्या पित्तोपतप्त रसनस्य नरोचिकानु त्वादरातनुदिनं खलु शैव जुष्टा स्वाद्विक्रमापि तद्गतमूलहन्त्री। स्यात् कृष्ण नामादि, स्यात् कृष्ण नाम चरितादि सिताप्य। कैसा होता है? कृष्ण परमा, स्यात् कृष्ण नाम चरितादि, कृष्ण का रूप, नाम और चरित्र कैसा होता है? सिताप्य, अति अति मधुर, मिश्रित जैसा होता है। अविद्या पित्तोपतप्त रसनस्य नरोचिका। लेकिन पित्तोपतप्त, जिस व्यक्ति को पित्त का रोग हुआ है, उस व्यक्ति ये भौतिक जगत में कृष्ण भावनामृत का रुचि नहीं ले सकता है। जैसा पित्त रोगी को अगर मिश्री दिया जाए तो उसको बहुत कड़वा लगेगा, तो बोलेगा कि मुझे नहीं चाहिए। इतना मधुर चीज उनके सामने रख रहा है और वो बोल रहे हैं कि मुझे नहीं चाहिए। ऐसे ही होता है जो व्यक्ति अविद्या में है, उसको ये रुचि नहीं हो सकता। कौन सा रुचि नहीं हो सकता है? नो। जो इतना सुंदर कृष्ण का जो नाम चरित्र, श्रीमद् भागवतम जैसा मूल ग्रंथ, उसको रुचि नहीं आ सकता है। त्वादरातनुदिनं खलु शैव जुष्टा। लेकिन अगर
बहुत ध्यान से हम कृष्ण का नाम अनुदिन हमेशा 24 आवर्स ए डे उसका रुचि चूसने का कोशिश कर रहा है, तो स्वाद्विक्रमात् भवति तद् गदमूलहन्त्री। अगर वो रुचि वाला कृष्ण का वो सुंदर रूप, कृष्ण का जो वो सुंदर चरित्र, श्रीमद् भागवतम का एक एक पन्ना जाके पढ़ने का कोशिश किया और वो भी शुद्ध भक्तों से सुनने का प्रयास किया, तो क्या होता है? तद्गतमूलहन्त्री, तद्गत वो जो रोग है हमारा, अविद्या का जो रोग हमेशा होता है ना, अविद्या नहीं चाहिए मुझे आज मैं जब थोड़ा डिले करेगा, रात को करेगा, दूसरा काम है, उसको इंपॉर्टेंस देता है हम कभी कभार, और ये बताता है कि मेरा प्रायोरिटी दूसरा है। तो अविद्या माया का जो चाल से हम हमेशा फंसता है। जो वो अविद्या हम कैसा दूर करें? श्री ईशोपनिषद का में बता रहे, ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जो साक्षात पूर्णता वाला कृष्ण भगवान, वो कभी अपूर्ण नहीं होता है। ये विद्या हम समझता नहीं है, हमारा अविद्या है वो, कि कृष्ण का जो पूर्णता को हम समझने का कोशिश नहीं करता है। कितना भी बद्ध जीव कृष्ण का जो कण है, वो उसे कृष्ण को पूर्णता समझने का कोशिश नहीं करता है, और वो स्वतंत्रता चाहता है कि ये दुनिया में आके, ये प्रपंच में आके मैं ऐश करूं, और 84 लाख योनियों में हम हमारा जन्म मृत्यु का चक्र में पड़ता है। विष्णु पुराण में ये बता रहा है कि जलज नवलक्षानि स्थावर लक्ष्य विंशति कृमेय रुद्र संख्याय पक्षिणां दशलक्षणम् लक्षानि पाशव चतुर्लक्षानि मानुष। 84 लाख स्पीशीज के बारे में विष्णु पुराण में ये बता रहा है। शीला प्रभुपाद जी हमेशा इसके बारे में बता रहा है कि जन्म मृत्यु का चक्र, जो हम अविद्या, जो हमारा अविद्या, हम विद्या से जो भगवान का पूर्णता को समझना नहीं चाहता है, तो ये मृत्यु जन्म का चक्र में हम हमारा संभोग के लिए पढ़ना चाहता है। लेकिन हम ये समझने के लिए कोशिश नहीं कर रहे हैं जो भगवत गीता में बताया है। दूसरा अध्याय 20वां श्लोक, न जायते म्रियते वा कदाचन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे
ये जो आत्मा है हमारा, उसका जन्म और मरण नहीं होता है, और ये जो आत्मा हमेशा के लिए रहता है, उसका जन्म मृत्यु कभी नहीं होता। वो सबसे पुरातन काल से है, और जब ये शरीर का त्याग होता है और शरीर का विच्छेदित मरण होता है, तब भी आत्मा का मरण नहीं होता है। तो इस मानव जन्म में हम हमेशा अविद्या से दूर रहकर कृष्ण भावनामृत में जुड़ने का प्रयास करना चाहिए। तो हमारा जो मुख्य उद्देश्य है, जो शीला प्रभुपाद जी ने दिया है और चैतन्य महाप्रभु जी ने दिया है, कि जीवेर स्वरूप हया कृष्णेर नित्य दास। जो माया का अंधकार से हमको अगर दूर होना चाहिए, तो हमेशा हम कृष्णेर नित्य दास होना चाहिए। तो आज का समय शायद मेरा हो गया है, मैं इधर कथा का विराम देने के लिए कोशिश कर रहा हूं। तो संक्षेप में आज का चर्चा का विषय मैं बताना चाहता हूं। आज हमने सबसे पहले भगवान और शुद्ध भक्ति का बारे में सुना, और उसका व्यक्तिगत उदाहरण भी देखा कि कैसा कृष्ण भावनामृत भक्तों एक दूसरे को प्रेरित करता है, और इस शीला प्रभुपाद जी का जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन में आगे जाने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहन करता है, और दूसरे जो लोगों को भी कैसा कृष्ण भावनामृत का रुचि देने का प्रयास करता है। दूसरा हमने चर्चा किया कि युधिष्ठिर महाराज इतने बड़े राजा होने के बाद भी हमेशा कैसा उसका ह्यूमिलिटी दिखाता है, और हमको समझाता है कि हमारा पोजीशन क्या होना चाहिए। तीसरा, हम उपदेशामृत से जो शीला रूपा गोस्वामी का श्लोक की चर्चा किया, उसमें हमने डिफरेंस देखा कि अविद्या और विद्या क्या है, और ईशोपनिषद से श्लोक से पूर्णता, जो इन्वोकेशन मंत्र है, जो पूर्णता, कृष्ण परमात्मा का पूर्णता, ये अविद्या व्यक्ति मनन करने के लिए प्रयास करने नहीं कर रहा है। और लास्ट हमने ये सीखा कि चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत से जो श्लोक है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, जो भगवत गीता 2 अध्याय 20वां श्लोक के मुखांतर हमने कनेक्ट करने के लिए कोशिश किया। अभी मैं ये चैप्टर जो कुंती महारानी का जो स्तुति है, उसका एक श्लोक, और भीष्मदेव का जो भीष्माष्टमी अभी अभी हुआ है, उसका एक श्लोक के मुखांतर विराम देना चाहता हूँ। प्रभु, अगर आपका परमिशन है तो आई विल जस्ट कवर अप दीस 2 श्लोकास आल्सो टू एंड माय सेशन। यस सर, प्लीज। तो ये यही स्कंद पे, यही अध्याय पे 42 श्लोका है। त्वयि मे अनन्य विषया मतिर्मधुपते सकृ रतिम
त्वहदातत्ता गंगैवौगम उदन्वती। कुंती महारानी प्रार्थना करता है, किसको प्रार्थना करता है? मधुपति। मेरा जो भक्ति में आगे जाने का कोशिश में कर रहा हूं, तो मुझे आपको शरण में ले लो। कैसा शरण ले लूं? गंगैवौगम उदन्वती। जैसा गंगा मां सीधा समुद्र की तरफ किसी तरह बिना देखे आगे जाता है, उसका जो श्रद्धा किसी पत्थर या जड़ी बूटी जो नदी में है वो ना देख के सीधा आगे की तरफ जाता है, वैसे ही श्रद्धा हमारा सब, ये बद्ध जीव, मेरा जैसा बद्ध जीव, हमारा सब ये कृष्ण भावनामृत में जुड़ा रहना चाहिए। और हमने भीष्माष्टमी के समय पे ये देखा कि युधिष्ठिर महाराज और पूरा पंच पांडवों के साथ कृष्ण भगवान उसको लेके आता है। कैसे लेके आता है? कि भीष्म देव का जो शिक्षा युधिष्ठिर महाराज और पंच पांडवों को प्राप्त करने के लिए, वो समय पे जो भीष्म देव को वर था कि उसका पिताजी से कि इच्छा मरण, लेकिन वो मरण के समय पे आगे कृष्ण परमात्मा को देख के स्तुति करता है। पहला स्कंद 9वां अध्याय 33 श्लोक का, जो आगे जाके हम अगले अध्याय, तो वो अध्याय पे हमारा मेरा मन भी वैसे ही कृष्ण का जो वो रूप में समाना चाहिए, ये हमारा शिक्षा होना चाहिए। तो क्या था वो श्लोक? त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौवर आंबरम ददाने वपुरलककुरा वृथाननाक्षम विजय सखेरति रस्तु मेनवद्या। त्रिभुवन कमनम, जो सबसे वांछित आकर्षित, तो तीनों लोक का स्वामी कृष्ण परमात्मा मेरे सामने खड़ा है। उसका वर्णन कैसा है? तमाल वर्णम, तमाल वृक्ष का नीले जैसा रंग वाला श्री कृष्ण परमात्मा का जो रूप, रवि कर गौर परांबरम ददाने, जो सूर्य किरणों का जैसा रंग, गौर रंग वाला जो वस्त्र पहन के मेरे सामने खड़ा है। वह पूरा लकुला वृथाननाक्षम, उसका जो वपु, जो सुंदर सा शरीर पे अति सुंदर सुगंधित चंदन का जो चित्र वर्णित किया हुआ है, चित्र से अलंकृत किया हुआ है, और वो सुंदर रूप जो पद्म जैसा रूप, मुख कमल मेरे सामने ये दृश्य हमेशा होना चाहिए। ये भीष्म देव का प्रार्थना है। लास्ट सेंटेंस में जो ये श्लोक का लास्ट लाइन ऐसा होता है,
विजय सके रतिरस्तु में नवद्या। ये मेरे लिए है। क्यों? क्योंकि आप सब भक्त कृष्ण भगवान को सबसे प्यारा है। तो ये विजय सके, जो अर्जुन का सखा, मतलब जो साधु का संग करता है, उस व्यक्ति को रतिरस्तु में नवद्या। मेरा जो आकर्षण हमेशा भौतिक दृष्टि से दूर होके उसका फल जितना भी है वो भगवान को अर्पित करके, ये भौतिक इच्छा से दूर होके साक्षात कृष्ण परमात्मा का शरण मुझे दे दो भगवान बोल के मैं अपना कथा विराम दे रहा हूं। अगर कुछ त्रुटि हुई है, कुछ गलती हुए, तो छोटा बच्चा समझ के फॉरगिव मी। ये हमेशा मैं कोशिश करता हूँ कि जितना भी हो सके श्रीला प्रभुपाद जी और अन्य वरिष्ठ वैष्णव का जो मुखारविंद से जो आया हुआ है वही शब्द मेरा मुंह से निकलने का। लेकिन फिर भी बद्ध जीव हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि अविद्या के वजह से कुछ न कुछ बोल देता हूँ। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हर निशाम मया दासोहम इति माम मत्वा क्षमस्व मधुसूदन। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। Thank you very much, Prabhuji, for the opportunity. Hare Krishna. Thank you, मुरलीधर चरण प्रभु। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा आपने क्लास दिया एंड आपका हिंदी सुन के मैं बहुत एकदम आश्चर्यचकित हुआ। सच नाइस हिंदी, मतलब इतना ही अच्छा हिंदी मेरा भी नहीं है। तो थैंक यू प्रभु, इट वाज अ वेरी नाइस हिंदी क्लास। एंड जो आपने बहुत सारा पॉइंट अच्छा उसमें बताया आपने कि कैसे भक्तों का संग जो है कितना इम्पोर्टेंट है। फिर लॉट ऑफ पॉइंट एंड यू समराइज्ड आल्सो, मतलब एंड में उसको समराइज भी कर दिया आपने। तो दैट वाज वेरी नाइस प्रभु। तो रिक्वेस्ट ऐसे ही आप बीच बीच में आते रहिए और अपना संग हमें देते रहिए क्विकली। आई थिंक आपको भी मतलब इट्स गेटिंग लेट, बट अगर किसी भक्त को कोई क्वेश्चन है तो हम लोग वी कैन टेक 1 or 2 क्वेश्चन। इज इट ओके प्रभु? Prabhuji, even though I am not qualified to give the answers since you all are there as exalted devotees, however, I will try if at all possible, otherwise you will have to support me. हरे कृष्णा। या तो किसी भक्त का कोई अगर प्रश्न है आज के जो प्रवचन से संबंधित अगर कुछ है, if anybody has any questions related to today's topic, please raise your hands or please speak up. या सर्वदेव प्रभु जी, हरे कृष्णा। या हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच प्रभु जी। इट वाज वेरी वंडरफुल सेशन, बहुत अच्छा सेशन था प्रभु जी। एंड देयर आर सो मेनी पॉइंट्स आपने हम लोग को बताया प्रभु। एंड दैट जैसे जैसे आप श्लोक जब गाते थे तो बहुत अच्छा लग रहा था प्रभु, जो जैसे आप श्लोक गा रहे थे। या प्रभु, तो थैंक यू सो मच प्रभु जी। एक मेरा क्वेश्चन था प्रभु, जैसे कि आपने जो श्रीमद् भागवतम के सुनने के ऊपर कहा प्रभु, तो हम लोग हमेशा सुनते हैं कि कोई अभक्त के मुंह से हमें नहीं सुनना है। तो श्रीमद् भागवतम स्वयं भगवान कृष्ण है,
सो जब हम अभक्त के मुंह से सुनते हैं भागवतम को, सो हाउ इट वर्क्स प्रभु, मतलब वो स्वयं भगवान ही है, भागवतम श्रीमद् भागवतम स्वयं भगवान कृष्ण है, तो इज इट मतलब हमें फिर किस तरह वो उसको देखना है, बिकॉज वो तो स्वयं भगवान कृष्ण है, सो हाउ वी विल टेक दैट थिंग्स प्रभु, जब हम अभक्त के मुंह से नहीं सुनना है बोलते हैं, तो कैन यू क्लैरिटी, मतलब वो है, क्योंकि आपने वो एक पॉइंट उठाया था श्रीमद् भागवतम सुनने के ऊपर, तो उसके ऊपर अगर कुछ आप बोल पाए तो। हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु। All is grace, Sarvodaya Prabhuji. Very, very nice question. Fantastic. Really mind-blowing one. Literally saying that. Can I answer in English if it's don't mind, because my flow will be very slow if I'm doing in Hindi. If it's all okay for you. Yes, sir, please. So this particular question, Srila Prabhupada ji has mentioned, Srimad Bhagavatam per se is the personification of the Supreme Personality of Godhead. So it doesn't get contaminated at any given situation, whether it is in hell or in heaven or in the earth. But if it is being heard from a non-devotee, the intention of the person who is giving Srimad Bhagavatam is to twist the matter to his favor, which has a taste of bhautik, which is for his fruitful results. Just like the analogy where the milk per se is not poisonous, but if it is touched by the mouth of a serpent, poisonous snake, and then we consume the milk is getting turned into poison. So milk per se is pure, but because it is touched by the snake, which is given by the analogy, that particular item gets contaminated. Srimad Bhagavatam per se will not get contaminated. It is always Amala Puran. But the intention behind it and the person who is receiving it twists according to their nature, which is for the negative purposes. So I hope I have answered, but however, the senior devotees over here can add on to the points. I have tried my best. Hare Krishna. I hope it is okay, Prabhuji. Yes, sir, wonderfully answered. This is the analogy which immediately comes to mind whenever such thing comes up, because and very nicely explained also, Prabhu. You said that Amal, it is an Amal Quran. It never gets contaminated. But the interest or the benefit or the goal, that is totally twisted. So that's why it is a poison for the person who is hearing from a non-devotee. It may be a Amrita, but if something is mixed in it, what is supposed to do will not, that reaction will not happen. So that's why we need to avoid it from hearing from non-devotees and professional speakers. Like we see, there are so many professional speakers. Thank you, Muralidhar Prabhu, and thank you, Sarvodaya Prabhu, for such a nice question. Thank you so much, Prabhuji. Thank you so much. Hare Krishna, Prabhuji. Anybody else will take one last question? Okay, it seems there are no questions. So, thank you again, once again, Muralidhar Charan Prabhu, for accepting the invitation. And thank you all the devotees who have joined. And it was a very nice session, and we hope we keep continuing this interaction very frequently.
So I request you, whenever you have time, please give us some time, and then we can have more frequent such sessions. Satraj Prabhu has raised his hand. Satraj Prabhu. Hare Krishna, Hare Krishna Prabhuji, Dandavat Pranam. First of all, thank you Surat Mother Prabhu and thank you Gopi Mona Prabhu and thank you Murlidhar Charan Prabhu. I'm really glad because आज वरा द्वादशी वरात जी का appearance day and such a nice lecture. You're there are 27 devotees Prabhuji. Everyone like listening. You wonderful class. Thank you so much. And I'm listening. मैं जब ये प्रभु जी से पहले मिला रसल खेमा में तो लाइक प्रभु जी जस्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश लेकिन अभी उनका क्लास सुन के ऐसा मधुरता आ रहा है लाइक प्रभु जी इज कोटिंग श्लोकास फ्रॉम भगवद गीता उपदेशामृत ईशोपनिषद एंड इवन द विष्णु पुराण अमेजिंग प्रभु जी सिंपली अमेजिंग एंड लाइक जैसे आपने प्रभु जी बताया कि जैसे जो बीच है जो सूरत मधु प्रभु ने रियली प्रभु जी हम लोग देख सकते कि ग्रेस गोपी में प्रभु जो है उनका क्लास उधर हुआ था रसल खेमा में आई स्टिल रिमेम्बर एंड लाइक ये एसोसिएशन प्रभु जी बहुत इम्पोर्टेंट है और जैसे आपने बताया प्रभु जी योर क्लास इज अमेजिंग थैंक यू सो मच प्रभु जी थैंक यू सो मच एंड एज यू सेड लाइक आवर प्रायोरिटी जपा फर्स्ट हम लोग बाकी प्रायोरिटी नहीं देना चाहिए फिर आपने वो भी बताया पॉइंट बहुत अच्छा लगा तो अविद्या की वजह से अपने पॉइंट हाईलाइट करके बताया वैष्णव क्वालिटीज एंड प्रभु जी यू हैव इट एंड थ्रू योर Hindi we can make it out Prabhuji. You are humble Prabhuji. Thank you so much Prabhuji for wonderful class and wonderful association. As His Grace Gopi Prabhu rightly said that please give us association so we get enlightened Prabhuji. Thank you so much Prabhuji. Hare Krishna. Thank you very much, Satyaraj Prabhu, and all of you, Gopi Manohar Prabhu, Grace Surat Madhav Prabhu. So it really relished me the olden days, 2011 in Russell Khema, where we went for the ashram preaching. All three of you were there at the Algale area. So now many of them from Russell Khema as well as Konkani, a few of them have joined the session. I'm very thankful to them also because my Hindi, when I am asked to give a class in Hindi, I go and approach all these devotees and say, please teach me before the class what I should say in Hindi. So I try to give the references and they tell me in Hindi and they try to teach me. They also translate in Hindi as well as they recite the shloka and send it to me. So this gives me an opportunity to listen to them, the devotees. Like many of them, I don't want to name one or two. So all of them gives me that enthusiasm and benefit to progress in Srila Prabhupada's movements, Krishna Bhavanamrit. So that is the reason, with the blessings of Sadhu Sangha and Guru Maharaj, the class, whatever is given by this wretched soul, comes in a very, very enlightened. All because the credit goes to the senior devotees and Vaishnavas. Hare Krishna. Yes, sir, Jaya. Hare Krishna Prabhuji, I'm audible Prabhuji? Yeah, you are audible, yeah. Yeah, Hare Krishna Prabhuji, very, very beautiful class Prabhuji you have given to us today. Thank you so much. Prabhuji, you made a mention of how Yudhishthir Maharaj, I have a question saying that where you gave an example that how Yudhishthir Maharaj was so religious that he, really he had the when he felt that they have killed all the kinsmen all and they had this guilty conscience that, and especially Yudhishthir Maharaj, you said, had this conscience that I have been the reason where all the kinsmen have been killed. So my question here will be that in contrary to that, in the contradiction in today's material world, how do we see
people who are murderers. I mean, people will go to any extent. I mean, contrary to what Yudhishthir Maharaj felt when he did that. But today, in today's time, in the Kali Yuga, we see that people, at least Yudhishthir Maharaj had the guilty conscience, but people over here go about killing people, murderers, and all these things. Prabhuji, that happens, and people do not even have the guilty conscience. They are not even sorry for what they did. So, Prabhuji, how do we see this contradictions or this kind of paradox which we see in the current material world? Because, and this is not just the case of one person. They go murdering and all. They do that very easily, but we see people. Means cheating propensity is still there. Agar unka bas chalta, to they would have even killed each other. But because there is law and order in the nation and all these things are there, but that time Yudhishthir Maharaj and all these were religious people. They had Krishna with them. They had the knowledge of Shastras and everything. They were pious people. But Prabhuji, today we do not see that in material world, right? तो आप उसको कैसे मीन्स प्रभु जी सब्सटैंशिएट करेंगे मीन्स बिकॉज अभी तो लोगों को even if they kill each other उनको they are not even sorry for what they did. They will never be, because the quarrelsome nature, we have learned it in material world. There's quarrelsome nature and they can go to any extent to harm anybody, to the extent of even killing Prabhuji. So Yudhishthir Maharaj ko to ye conscience ho raha tha ki I have killed and because of me they have all died. So how do we substantiate this with the uh, you know this kind of propensity today, Prabhuji, of today's material people, Prabhuji? This is the question, Prabhuji. Hare Krishna Mataji, very, very nice question. In the modern context, we always have this in our mind which is bothering us. Srila Prabhupada, in the lecture of 1.9.52, has given the answer for it. Bhuta Hatya, Panchasuna Yagya. So describing those areas, that in this modern world, people come without understanding their ultimate objective of life, which is going back to Godhead, serving the Supreme Personality of Godhead. They come for enjoyment, and many commit so many mistakes. And to the extent what you rightly pointed out, to the extent of murder, fight between husband and wife, fight between father and child, fight between father and mother, grandfather. So each one is ready to do to whatever extent the unlawful things. His Divine Grace Srila Prabhupada, in his days, 1967, 66 to 70s, had gone through similar situations. So his only objective was few things. Most importantly, the objective was to obey the spiritual master, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura instructed Srila Prabhupada to go to the West and preach in English. And this was also referred by Srila Bhaktivinoda Thakura earlier. So when there was many difficulties for Srila Prabhupada, he could have stayed in India at Radha Damodar temple and continued with this sadhana. But his only objective was to please the spiritual master from the point of view that what Chaitanya Mahaprabhu said, every house in nook and corner of the world should have Harinam. In those days, in Srila Prabhupada Lilamrita,
when the independence was the most important point of discussion, and every youth, including Srila Prabhupada, was attracted towards independence. But when he met the spiritual master and understood the main objective is not the independence of nation, but the independence of soul converted into dependence to the Supreme Personality of Godhead, which could make the world very, very positive and reach the goal of reaching back to Godhead. So Srila Prabhupada took all the efforts and went to the West and dealt among such persons. And here we can learn how the role of Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, and the pure devotee can influence the worst persons in this world. So that objective, if it is met, this world will be free from such demoniac nature. Otherwise, the intention of this independent Jivatma is to enjoy. And they are coming into this Dukhalayam, Ashashvatam, with avidya, under the control of Maya, Devi Esha Gunamai, Mama Maya Durtya. They are not ready to go to the Supreme Personality of Godhead, who is saying, Maya is under my control. But we think, I am the controller and do all these kind of nonsense. So we should, since we are connected to the Supreme Personality of Godhead through Chaitanya Mahaprabhu's mission, Srila Prabhupada's mission, it is our duty also to try to preach and get as much as people into devotional service. It doesn't mean that that person should chant 16 rounds next day. It is enough he is slightly inclined towards favorable Krishna consciousness. Even if it is not there, let him hear the names of the holy names. Like Srila Prabhupada went to the West, and throughout the world, Jagannath Rath Yatra takes place. It's not just at Jagannath Puri. Throughout the world. Why does Jagannath comes to the streets? Just to give darshan, so that person who is passing by, however fallen he is, just because of the glance of the Lord, get that Ajnata Sukriti. So this is how the only means which the world. If there is anything to be added, Varisht Bhakti ko add kar sakta hai. Hare Krishna. Hope Mataji, it's okay for you. Yeah, thank you, Prabhu. Very nicely answered. And it is also Kali Yuga, so we cannot expect people to be very saintly. So the only solution is to come to Krishna consciousness. So thank you very much, Muralidhar Charan Prabhu. Thank you very much. And okay, I think we'll stop here. It's satisfactory for you? Jai Mataji. Yes, Prabhuji. If you go into the 12th chapter, Kaler Doshani De Rajan Asti Eko Mahan Guna Kirtanadasya Kirtanadeva Krishnasya Mukta Sangam Param Braje. So this Kali Yuga, only Kirtaniya Sadahari is applicable, nothing else. Hare Krishna. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. Thank you, Muralidhar Prabhu. Thank you very much. And as I was saying, thank you for your Hindi class. And also, like Satyaraj Prabhu pointed out, he
tunes what you're singing is very nice and something different we have never had. This is really very nice and melodious tune. So we we enjoyed that hearing that tune. Thank you very much. And okay, as I said, like I request you to keep giving more and more of your association, so we can keep hearing more nectar from you. Thank you very much, Muralidhar Charan Prabhu. Hare Krishna. Namaskar. So thank you. So we will continue with our further nursing aarti and prayers, Prabhu. If you want. So with your permission, if I can leave, nothing like it, Prabhuji, because I It's okay. You can leave. thank you very much. Thank you very much. कल्पतरु वेश्च कृपा सिंधु देवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय। श्री ग्रेस मुरलीधर चरण प्रभु की जय। श्री प्रभुपाद की जय। इस्कॉन गोविंद की जय। वेद भक्त वृंद की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। Yeah. Thank you. Thank you. Okay. Sarvodaya Prabhu, can somebody do nursing aarti and we can take prayers? Hare Krishna. Yeah, Hare Krishna, Prabhuji.